السلام علیکم دوستو آج جو میں کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ دو بہنوں کی ہے، ایمی اور آنو۔ یہ دو بہنیں جارجیا کی تھیں۔ ہوا یوں کہ جب وہ پیدا ہوئیں تو انہیں ان کی والدہ سے چھین کر دو الگ خاندانوں کو بیچ دیا گیا تھا۔ کئی سال بعد اتفاقیہ انہیں ایک ٹی وی ٹیلنٹ شو اور ٹک ٹاک کی بدولت ایک دوسرے کے بارے میں پتہ چلا۔ ہاں دوستو، ٹک ٹاک جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت فضول کاموں کے لیے یوز ہو رہی ہے، وہاں اس کے کچھ پازیٹیو پہلو بھی ہیں۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کے تھرو لوگ آپس میں مل رہے ہیں، جو بچھڑے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی آپس میں مل رہے ہیں، اور ویسے بھی شادیاں کرنے کے لیے بھی لوگ آپس میں مل رہے ہیں۔ تو اس کے پازیٹیو یوز بھی ہیں اور نیگیٹیو یوز بھی ہیں۔ تو یہاں جو سٹوری ہے یہ اس سوشل میڈیا کی پازیٹیو سائیڈ ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ انہیں اپنی سٹوری کے بارے میں کیسے پتہ چلا کہ مثلا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو کہ آپ بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہوں اور اچانک آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو میرے پیرنٹس ہیں یہ تو میرے پیرنٹس ہیں ہی نہیں ہیں، میں تو ان کا بیٹا یا بیٹی ہوں ہی نہیں، میرے پیرنٹس تو کوئی اور ہیں۔ اور پھر آپ اس سٹوری کو جاننے کی کوشش کریں کہ کیا ہوا، میں اس گھر میں کیسے پہنچی یا پہنچا، میرے ساتھ کیا ہوا۔ اور اس سے بڑی بات آپ کو یہ پتہ چلے کہ اکیلا میں گم نہیں ہوا، بلکہ میرے ساتھ میرا سبلنگ تھا، میرا بہن بھائی تھا، وہ بھی گم ہو گیا تھا اور وہ کسی اور خاندان میں پال رہا ہے۔ اس طرح کی ٹریجڈیز ہماری دنیا میں ہو رہی ہیں، اس طرح کی ریئل سٹوریز ہیں، تو یہ بھی ایک ریئل سٹوری ہے۔ تو ایمی اور آنو، ان کی سٹوری بھی بہت دکھی ہے۔ ایمی اور آنو، ان دو بہنوں کی سٹوری بھی بہت ہی دکھی ہے۔ ایمی اور آنو نے اس سچ کی تلاش کے لیے 2 سال محنت کی، تحقیق کی۔ اس دوران انہیں یہ پتہ چلا کہ جارجیا میں کئی ہزار ایسے لوگ ہیں جنہیں کئی دہائیوں پر محیط عرصے میں ہاسپٹل سے بیچا گیا یا وہ نومولود تھے۔ سرکاری سطح پر تحقیقات کی کوششیں ہوئیں، لیکن ابھی تک کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا۔ ایمی اور آنو کی ایک دوسرے کو دریافت کرنے کی کہانی تب شروع ہوتی ہے جب وہ 12 سال کی تھیں۔ ایمی اپنی موم کے ساتھ، اصلی موم نہیں، وہ موم جو اسے پال رہی تھی، وہ ان کے ساتھ بیٹھی اپنا پسندیدہ ٹی وی شو دیکھ رہی تھی، جارجیا گاٹ ٹیلنٹ۔ جس طرح امریکہ گاٹ ٹیلنٹ ہے، آسٹریلیا گاٹ ٹیلنٹ، انڈیا گاٹ ٹیلنٹ، تو جارجیا کا اپنا شو ہے جارجیا گاٹ ٹیلنٹ۔ وہاں لوگ اپنا ٹیلنٹ شو کرتے ہیں۔ وہ دیکھتی ہے کہ وہاں ایک لڑکی ڈانس کر رہی ہے جو بالکل ان جیسی لگ رہی تھی۔ وہ نہ صرف ان کی طرح لگ رہی تھی بلکہ حقیقت میں دونوں ایک جیسی ہی تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہر کوئی میری والدہ کو فون کر کے پوچھ رہا تھا کہ ایمی دوسری نام کے ساتھ کیوں رقص کر رہی ہے۔ ایمی نے اس بارے میں اپنی موم سے پوچھا، اپنے گھر والوں سے پوچھا، تو انہوں نے بات ٹال دی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر کسی کا ہم شکل ہوتا ہے، تو یہ بھی تمہاری کوئی ہم شکل ہے، تو انہوں نے بات ٹال دی۔ وہ اصل کہانی سے کیا سناتی؟ 7 سال بعد، جی ہاں 7 سال گزر گئے۔ 2021 میں جب ٹک ٹاک بہت زیادہ عام ہو چکا تھا، ایمی نے بھی ٹک ٹاک ٹرینڈ کو فالو کرتے ہوئے اب کوئی سٹائل کیا اور اس فیشن کو لوگوں کو دکھانے کے لیے ٹک ٹاک پر ویڈیو لگا دی۔ اس جگہ سے 320 کلومیٹر دور جارجیا کے دارالحکومت تبلیسی میں 19 سال کی آنو ساتانیہ کی دوست نے انہیں ایک ویڈیو بھیجی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں یہ بہت دلچسپ بات تھی کہ ویڈیو پر نظر آنے والی لڑکی آنو کی طرح لگتی ہے۔ آنو نے ویڈیو میں نظر آنے والی لڑکی کو انٹرنیٹ پر ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ انہیں نہیں ڈھونڈ پائیں۔ پھر انہوں نے اپنی یونیورسٹی کے واٹس ایپ گروپ میں اس ویڈیو کو شیئر کیا، اس سوچ کے ساتھ کہ شاید وہاں سے کوئی ان کی ہیلپ کر سکے۔ اس گروپ میں ایک ممبر تھا جو ایمی کو جانتا تھا۔ انہوں نے میسج دیکھا اور ان دونوں کا فیس بک پر رابطہ بھی کروایا۔ ایمی کو فوراً معلوم ہو گیا کہ آنو وہی لڑکی ہے جس سے کئی سال پہلے انہوں نے جارجیا گاٹ ٹیلنٹ میں ہی دیکھا تھا۔ انہوں نے آنو کو میسج میں لکھا، میں آپ کو طویل عرصے سے ڈھونڈ رہی ہوں، اور آنو نے جواب میں لکھا، میں بھی۔ اگلے چند دنوں میں انہیں معلوم ہوا کہ ان میں بہت ساری چیزیں مشترکہ ہیں، لیکن انہیں اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ان دونوں کی پیدائش ویسٹ جارجیا کے ایک میٹرنٹی ہاسپٹل میں ہوئی اور ان کی یوم پیدائش میں کچھ ویکس کا فرق ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہاسپٹل اب موجود نہیں ہے۔ جڑواں تو دور کی بات، وہ بہنیں بھی نہیں ہو سکتی، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ایک جیسی تھیں۔ انہیں ایک ہی قسم کی موسیقی پسند تھی، انہیں ڈانس کرنا پسند تھا، دونوں کے بالوں کا سٹائل بھی تقریباً ایک جیسا تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ دونوں کو ایک ہی جیسی جینیاتی بیماری ہے، یہ ہڈیوں کی بیماری ڈسپلاسیا ہے۔ اب دونوں اور بھی زیادہ پرتجسس ہو گئی تھی۔ ایمی کہتی ہے کہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ ہم دونوں مل کر ایک مسٹری سالو کر رہی ہیں۔ جب بھی مجھے آنو کے بارے میں نئی بات معلوم ہوتی تو چیزیں عجیب ہو جاتی۔ ایک ہفتے بعد وہ ایک دوسرے کو ملی جب تبلیسی کے ایک میٹرو اسٹیشن کی سیڑھیوں سے ایمی نمودار ہوئی تو انہوں نے اور آنو نے ایک دوسرے کو پہلی مرتبہ اپنے آمنے سامنے دیکھا۔ ایمی کہتی ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے آئینہ دیکھ رہے ہیں، وہی چہرہ، وہی آواز، میں وہ ہوں اور وہ جو ہے وہ میں ہوں۔ اسی وقت انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دونوں جڑواں ہیں۔ آنو کہتی ہے کہ مجھے گلے لگنا پسند نہیں، لیکن میں نے اسے گلے لگا لیا۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا اور پہلی مرتبہ انہیں سچائی کے بارے میں معلوم ہوا۔ انہیں 2002 میں چند مہینوں کے فرق سے علیحدہ علیحدہ گول لیا گیا۔ ایمی یہ سن کر بہت ہی دکھی تھی۔ انہیں لگا کہ ان کی ساری زندگی جھوٹ پر مبنی تھی۔ سر سے پاؤں تک کالے رنگ میں ملبوس ایمی بہت سخت جان لگتی ہیں۔
लेकिन वो बेचैनी से अपने ग्लू बंद से खेल रही हैं और मुस्कारे वाले आंसू को अपनी गाल से साफ कर रही हैं। अनु मेरे अहले खाना पर बहुत गुस्सा हुई, लेकिन मैं इस डिफ़िकल्ट डिस्कशन का एंड चाहती थी ताकि हम सब अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ सकें। जुड़वा बहनों ने मज़ीद तहकीक की तो उन्हें मालूम हुआ कि सरकारी बर्थ सर्टिफिकेट पर जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो सब की सब गलत हैं। एमी को पालने वाली उनकी मॉम का कहना है कि उनकी औलाद नहीं हो सकी थी, तो उनकी फ्रेंड ने उन्हें बताया कि मकामी हॉस्पिटल में एक बच्चा है जिसे उसके पेरेंट्स अपने पास नहीं रखना चाहते। उन्हें डॉक्टर को पैसे देना होंगे, लेकिन वो उसे अपने साथ लेकर आ सकती हैं और अपने बच्चों की तरह पाल सकती हैं। अनु की वालदा को भी यही कहानी सुनाएगी। गोद लेने वाले दोनों घरानों को मालूम नहीं था कि लड़कियां जुड़वा हैं और बड़ी रकम देने के बावजूद उनका कहना है कि उन्हें इस बारे में मालूम नहीं था कि ये एक गैर कानूनी काम है। जॉर्जिया में हालात ख़राब थे क्योंकि हॉस्पिटल का अमला इस अमल में शामिल था, तो उन्हें लगा ये गैर कानूनी नहीं। दोनों खानदान ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने कितनी रकम दी थी। ना चाहते हुए भी जुड़वा बहनें ये सोचती हैं कि क्या उन्हें पैदा करने वाले वालिदैन ने उन्हें मुनाफा के लिए बेचा। अब यहाँ एमी चाहती है कि वो अपनी मोम से मिले ताकि उन्हें इस क्वेश्चन का जवाब मिल सके, लेकिन इस बारे में अनु अबहम का शिकार थी। उन्होंने एमी से पूछा, तुम उस शख्स से क्यों मिलना चाह रही हो जिसने शायद हमारे साथ बेवफाई की, हमें इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया और हमें जुदा भी कर दिया। अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। एमी को एक फेसबुक ग्रुप मिलता है जिसका मकसद बचपन में गैर कानूनी तौर पर गोद लिए गए बच्चों को जॉर्जिया में उनके हकीकी पेरेंट्स से मुलाकात करवाना था। उन्होंने इस ग्रुप पर अपनी कहानी शेयर की। जर्मनी से एक जवान खातून ने उनकी कहानी पर जवाब दिया कि उनकी मॉम ने हॉस्पिटल में 2002 में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन उसके बावजूद कि उस वक्त उन्हें बताया गया कि वो जुड़वा बच्चियां मर गई हैं। उनकी वालदा को अब इस पर शक है कि ये बात सच नहीं थी। यहाँ दोस्तों, यहाँ कहानी एक नया टर्न लेती है। अब डीएनए टेस्ट होता है जिससे पता चलता है कि फेसबुक पर मिलने वाली लड़की उनकी बहन है और वो जर्मनी में उनको पैदा करने वाली उनकी माँ आज़ा के साथ रहती हैं। एमी की बहुत ख्वाहिश थी कि वो आज़ा से मिलें, लेकिन अनु इस बारे में ज़्यादा मुस्बत नहीं थी। उन्होंने एमी को खबरदार किया, ये वो शख्स है जिसने शायद तुम्हें बेचा, ये तुम्हें सच नहीं बताएगी। उसके बावजूद अनु एमी के साथ जर्मनी जाने के लिए राज़ी हो गई। जिस फेसबुक ग्रुप का इस्तेमाल इन दोनों ने किया उसका नाम था विडज़ैब, यानी मैं ढूंढ रहा हूँ। इस ग्रुप में कई ऐसी पोस्ट हैं जिनमें बहुत सी माओं ने लिखा हुआ है कि हॉस्पिटल के अमले ने उन्हें बताया कि उनके 9 मौलूद बच्चे मर गए हैं, लेकिन बाद में सरकारी रिकॉर्ड में जब उन्होंने देखा तो उनकी मौत दर्ज नहीं थी, उनके बच्चे शायद अभी भी जिंदा हैं। दीगर पोस्टें भी एमी और अनु जैसी बच्चों की हैं जो उन्हें पैदा करने वाले वालिदैन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस ग्रुप में 2,30,000 से ज़ायद मेंबरान हैं और इसके साथ डीएनए के मुतालिक मालूमात देने वाली वेबसाइट्स तक की रसाई की वजह से जॉर्जिया की तारीख का ये तारीख बाब अब खुलकर सामने आ गया है। इस ग्रुप की बुनियाद सहाफ़ी तमूना मोसी रेडजे ने 2021 में रखी, जब उन्हें मालूम हुआ कि उन्हें गोद लिया गया था। जब वो अपनी वफात पा जाने वाली वालदा के घर की सफाई कर रही थी तो उन्हें उनका बर्थ सर्टिफिकेट मिला, उसमें गलत मालूमात दर्ज थी। उन्होंने अपने अहले खाना को ढूंढने के लिए इस ग्रुप का आगाज़ किया, लेकिन इस ग्रुप ने कई दहाइयों पर मुहीद और 10,000 अफराद को मुतासर करने वाले बच्चों की स्मगलिंग के स्कैंडल को बेनकाब किया। उन्होंने सैकड़ों खानदानों को बिछड़े हुए बच्चों से मिलाया, लेकिन वो अपने अहले खाना को नहीं ढूंढ सके। तमूना ने गोद लेने की एक ब्लैक मार्केट दरियाफ्त की जो पूरे जॉर्जिया में फैली हुई थी और 1950 की दहाई के अवाइल से 2000 तक जारी रही। उनका मानना है कि इसे मुनज़्ज़म गिरोह जराइम पेशा अफराद चलाते हैं और इसमें टैक्सी ड्राइवरों से लेकर हुकूमत के आला हुकाम तक माशरे के तमाम तबकों के लोग शामिल थे। वो कहती हैं इस जुर्म की तादाद का सवर भी नहीं किया जा सकता। 1 लाख तक बच्चे चुराए गए थे। तमूना बताती हैं कि उन्होंने इस अदाद व शुमार का हिसाब इन लोगों की तादाद को गिन कर लगाया है जिन्होंने उनसे रब्ता किया है और इस दौरानिए और मुल्क भर में केसेस का मुआजना किया है। दस्तावेज़ात तक रसाई ना होने की वजह से दुरुस्त अदाद व शुमार की तस्दीक करना नामुमकिन है। कुछ दस्तावेज खो चुकी हैं और बाकी को जारी नहीं किया जा रहा। तमूना का कहना है कि बहुत सारे पेरेंट्स ने उन्हें बताया कि जब उन्होंने अपने मुर्दा बच्चों की लाशें देखने के लिए कहा तो उन्हें बताया गया कि उन्हें पहले से ही हॉस्पिटल के मैदान में दफन कर दिया गया है। उसके बाद से उन्हें मालूम हुआ कि जॉर्जिया के हॉस्पिटल में कब्रिस्तान कभी मौजूद ही नहीं थे। दूसरी सूरतों में वालिदैन को ऐसे मुर्दा बच्चे दिखाए गए थे जो पहले से मुर्दा खाने में थे। इस तरह की और भी कहानियां हैं। तो दोस्तों, इधर लाइप्जिग के होटल में एमी और अनु उन्हें पैदा करने वाली माम को मिलने के लिए रेडी हैं। अनु कहती हैं कि उन्होंने अपना इरादा बदल लिया है और वो अब ये नहीं करना चाहती, लेकिन ये एक आर्जी हड़बड़ाहट है। वो एक लंबी सांस लेती हैं और इस अमल को जारी रखने का फैसला करती हैं। उनकी माँ आज़ाद दूसरे कमरे में बेचैनी से उनका वेट कर रही हैं। एमी हिचकिचाते हुए दरवाज़ा खोलती हैं और अनु उनके बच्चे अंदर आती हैं। वो तकरीबन अपनी बहन को जोर देकर कमरे के अंदर धकेलती हैं। आज़ा फौरन दोनों बच्चों को गले लगा लेती है। कुछ मिनट गुजर गए, कोई भी नहीं बोला और वो आपस में मिल रही हैं।
एमी के चेहरे से आंसू गिर रहे हैं, लेकिन अनु के चेहरे पर ऐसे आसार नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ी चिड़चिड़ाहट का शिकार है। तीनों बैठती हैं और अकेले में बात करती हैं। बाद में जुड़वा बहनों ने बताया कि उनकी वालदा ने उन्हें बताया कि उनकी पैदाइश के बाद वो बीमार हो गई थी और कोमे में चली गई थी। जब उनकी आंखें खुली तो हॉस्पिटल के अमले ने उन्हें बताया कि पैदाइश के बाद उनकी बच्चियां फौत हो गई थीं। उनका कहना था कि एमी और अनु से मुलाकात ने उनकी ज़िंदगी को एक नया मकसद दे दिया है। उसके बावजूद कि वो आपस में बहुत करीब नहीं हैं, लेकिन उनका राब्ता रहता है। उसके बाद जॉर्जिया में कानून बनाए गए और बच्चों को गोद लेने के कानून पर नज़रसानी की गई। इस केस की बात की जाए तो जॉर्जिया की हुकूमत ने 4 मरतबा कोशिश की कि वो ये पता लगाएं कि आखिर हुआ क्या था। इसमें 2003 में होने वाले बैनुल-अक़वामी बच्चों की स्मगलिंग की तहकीकात भी शामिल हैं, जिनमें मुतअद्दिद गिरफ्तारियां भी हुईं, लेकिन इस मुतालिक बहुत कम मालूमात आम की गई। इसके अलावा 2015 में जॉर्जिया के मकामी मीडिया ने इत्तला दी कि एक तहकीकात के नतीजे में रुस्तावी मैटरनिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर अलेक्जेंडर बारोकोव को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया, जिससे हम देख सकते हैं कि इसके पीछे कितना बड़ा माफिया है। तो जॉर्जिया यूरोप में ज़रूर है, लेकिन वो भी बहुत गया गुजरा कंट्री है। जॉर्जिया पर माफियाजी कंट्रोल करते हैं और उन्हीं की हुकूमत है, जिसकी वजह से इस तरह की अलमियत जन्म लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी एमी और अनु की कहानी, जो कि सोशल मीडिया की बदौलत, सोशल मीडिया की बरकत से, टिकटॉक की बरकत से एक दूसरे से मिलने में कामयाब हुई। जहाँ टेक्नोलॉजी के नुकसानात हैं और हमारी सोसाइटी में बैड फैक्ट्स हैं, तो हम देख सकते हैं यहाँ इसके बहुत से मुस्बत पहलू भी हैं। जहाँ हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो 1947 में जब सेपरेशन हुई तो उसमें बहुत से लोग थे, बहन भाई थे, औलादें थी, वो आपस में बिछड़ गए थे। तो जो बूढ़े थे वो तो अब तक फोत हो चुके हैं। तो जो उस वक्त बच्चे थे जो आपस में बिछड़ गए थे, बहन भाई आपस में रिलेटिव्स, तो इस सोशल मीडिया के बरकत से वो भी आपस में मिल रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।